first chapter that we will be doing, which is chapter number 1, Introduction. First section of this chapter talks about why economists use mathematics. I've given you a basic idea of what is the importance of mathematics in economics. You should read this section. There are some instances, some historical instances given in the first section, which you can definitely read and you will be able to understand. The second section of the chapter talks about scientific method in empirical sciences. Now, you must know that economics is nothing but an empirical science. Empirical science is something that is explained by data. Empirical का मतलब होता है data. So, economics में जो भी चीजें आप पढ़ते हो, whatever theory you are reading, any model that you are reading, it is based on data, and that is why economics को हम एक empirical science बोलते हैं. What is the exact method that we follow can be outlined into these pointers. The first is qualitative and quantitative observation. Okay, so I will explain these 5 points through a very basic example that demand is inversely related to prices. So we say कि demand curve जो होता है वो एक downward sloping curve होता है. Say I am talking about demand of a certain food product, food 1. If the price of this food product increases, we know that it is possible कि इसकी demand decrease हो जाएगी. So demand is inversely related to price. This is a theory of economics, ठीक है? But ये कहाँ से आई? ये हमें मालूम है कि प्राइसेस और डिमांड नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, बट वेयर डिड दिस ओरिजिनेट फ्रॉम? ये आया कहाँ से? हाउ डू वी नो फॉर श्योर दैट डिमांड एंड प्राइसेस आर इनवर्सली रिलेटेड? सो द ओरिजिन ऑफ सच थ्योरीज comes from these following pointers that I'm going to discuss now. First is qualitative and quantitative observation of any phenomena, either directly or by carefully designed experiment. मतलब किसी भी थ्योरी को एस्टैब्लिश करने से पहले आप उसको ऑब्जर्व करते हो, राइट? एंड इन इकोनॉमिक्स व्हेनेवर वी कम अप विद अ थ्योरी, हम किसी भी तरीके की थ्योरी जब स्टेट करते हैं तो हम पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं. दीज ऑब्जर्वेशंस कुड बी क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव का मतलब है दैट यू आर ऑब्जर्विंग फॉर अ सर्टेन फूड प्रोडक्ट. आप इसके प्राइसेस को नोट कर रहे हो और फिर आप देख रहे हो कि इसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है. यू आर क्वांटिटेटिवली ऑब्जर्विंग दिस. इसका मतलब है कि जब प्राइसेस 10 थी तो हो सकता है क्वांटिटी डिमांड 100 हो गई थी, और जब प्राइसेस 12 थी तो क्वांटिटी डिमांड 80 हो गई थी. तो आप बेसिकली मार्केट में नंबर्स ऑब्जर्व कर रहे हो और आप देख रहे हो कि क्या पैटर्न क्रिएट हो रहा है. सो दैट इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. Qualitative observation is not necessarily in terms of numbers. So suppose you are placed at a shop और आप एक product sell कर रहे हो और आप देख रहे हो कि जब ये product का प्राइस 10 था तो दुकान में बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग आ रहे थे इस product को खरीदने के लिए, लेकिन जैसे ही आपने इसका प्राइस 15 कर दिया, increase कर दिया, you saw a fall in the crowd in your shop. तो एक qualitative observation is something which is happening beyond numbers. तो any theory that comes into existence in economics or in any empirical science comes from a qualitative or quantitative observation of a certain phenomena, either directly or by a carefully designed experiment. Directly का मतलब है कि कुछ आपके आसपास हो रहा है और आपने ऑब्जर्व कर लिया that this is something that's happening around me. So that is a direct observation. Carefully designed experiment का observation है कि आप चाहते हो, आपने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करा हुआ है, यू वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या इस फूड प्रोडक्ट का डिमांड डिक्रीज होगा जब मैं इसकी प्राइस इंक्रीज करूंगी. सो यू वांट टू इंटेंशनली वांट टू क्रिएट अ सिनेरियो जहां पे आप कोई एक फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हो. सो दैट इज द सेटअप ऑफ अ केयरफुली डिजाइंड एक्सपेरिमेंट. सो द ऑब्जर्वेशंस कुड ईदर हैपन डायरेक्टली अराउंड योरसेल्व्स और आप एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करके कुछ फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हो. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, qualitative and quantitative observation. The second is numerical. Once you have observed a certain phenomena, then numerical and statistical processing of the observed data. So जब आपके पास एक observation आ गई है
तब आप उसको न्यूमेरिकली प्रोसेस करते हो, स्टेटिस्टिकली प्रोसेस करते हो। बेसिकली आप इन नंबर्स को समझने की कोशिश करते हो, एनालाइज करने की कोशिश करते हो कि अच्छा पहले प्राइस था 10 तो क्वांटिटी था 100, फिर प्राइस हुआ 12 तो क्वांटिटी हो गया 80। तो डेफिनेटली ऊपर ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है कि प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज आपको देखने में लग रही है कि अगर 2 रुपए से प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो आपका 20 यूनिट से क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना अफेक्ट हो रहा है प्राइसेस का एग्जैक्टली इन नंबर्स, कितना अमाउंट से क्वांटिटी चेंज हो रहा है जब आप प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो। सो द सेकेंड पॉइंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक थ्योरी इज numerical and statistical processing of the observed data. The third is constructing theoretical models that describe the observed phenomena and explain the relationships between them. So then once you have processed the data, जब आपने डेटा को प्रोसेस कर लिया है तो आप एक मॉडल बनाते हो। नाउ दिस इज अ मॉडल जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है दैट डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइसेस, दिस इज अ मॉडल। थ्योरेटिकल मॉडल का मतलब है कि जब आपने ये दोनों स्टेप्स को कवर अप कर लिया है तो आप फाइनली एक मॉडल बनाने की कोशिश करते हो जहां पे आप अपने ऑब्जर्व्ड डेटा में कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो। तो आपके पास डेटा था प्राइसेस पे और क्वांटिटी पे, आपने पहले एक ऑब्जर्वेशन को नोट करा इधर क्वांटिटेटिव तरीके से या क्वालिटेटिव तरीके से, फिर आपने इस नंबर को प्रोसेस करने का कोशिश करा और फिर थर्ड स्टेप में आपने एक थ्योरी बनाने की कोशिश करी। और वो थ्योरी कुछ इस तरीके से आपके पास बन के आ रही है कि डिमांड जो है ना प्राइसेस इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, देन द फोर्थ इज आप इस थ्योरी को यूज करोगे, यूज दीज थ्योरीज टू डिराइव प्रिडिक्शन। जब आपके हाथ में एक थ्योरी आ गई है तो बेसिकली एज अ साइंटिस्ट आप ये चीजें कर रहे हो। इकोनॉमिक्स में हो सकता है बहुत सारी थ्योरीज आपके पास ऑलरेडी हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी थ्योरीज अभी तक आई नहीं है इकोनॉमिक्स में एज अ फील्ड। तो मे बी एक दिन आपने कुछ नोटिस करा आपके आसपास कि ऐसा कुछ मेरे को होता हुआ दिख रहा है, तो इवन यू कैन क्रिएट अ थ्योरी फॉलोइंग दीज 5 simple steps. Obviously it looks simple but it requires a lot of research, a lot of data analysis. तो आपने कोई एक ट्रेंड ऑब्जर्व करा, आपने उसको प्रोसेस करा, आपने एक मॉडल बनाया, देन द फोर्थ इज कि आप इस मॉडल को और सिचुएशंस में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपने यहाँ पे देखा कि डिमांड और प्राइसेस जो है नेगेटिवली रिलेटेड है। अब आपने किसी और मार्केट में सेम चीज को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। तो आपने बोला कि मैं इस सेम चीज को पेट्रोल पे लगाने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा प्राइस और डिमांड इनवर्सली रिलेटेड होते हैं तो फिर ये तो हर मार्केट में एप्लीकेबल होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो फिर इसकी क्वांटिटी डिक्रीज होनी चाहिए। ये आपने प्रिडिक्शन बनाई है बेस्ड ऑन द थ्योरी जो आपने इन 3 स्टेप्स में कंस्ट्रक्ट करी थी। लेकिन हो सकता है आपकी ये प्रिडिक्शन सही हो सकता है आपकी ये प्रिडिक्शन गलत हो। अगर ये आपकी प्रिडिक्शन सही है तो आपका जो इस थ्योरी पे फेथ है वो इंक्रीज हो जाएगा कि हाँ जो हम एक थ्योरी बना रहे हैं वो सही थ्योरी हमने बनाई है कि डिमांड और प्राइसेस जो है इनवर्सली रिलेटेड है। लेकिन अगर आपकी प्रिडिक्शन गलत है, अगर आप देख रहे हो कि पेट्रोल के प्राइसेस तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन इसकी क्वांटिटी डिक्रीज नहीं हो रही, देन इट मीन्स देयर इज समथिंग मिसिंग इन योर थ्योरी। तो जब आप इस थ्योरी को प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हो और आपको कुछ ऐसी चीज देखने को मिलती है जो थ्योरी से सिंक नहीं कर रही है, देन यू करेक्ट and improve your theory, or your model so that the prediction is better. So maybe what you are missing is that it is only applicable based conditional, that other things are constant. So maybe this relationship is not that strong for commodities which are necessities, something that you need for your existence. Maybe this theory is not that strong for such commodities. और आपने साइमल्टेनियसली देखा कि किसी कमोडिटी का क्वालिटी इंक्रीज हो रहा है और आप तब देख रहे हो कि बेशक प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमांड फॉल नहीं कर रहा है, देन अगेन योर प्रिडिक्शन इज रॉन्ग। तो आपको एक नई चीज नोटिस करने को मिल रही है कि अगर क्वालिटी इंक्रीज हो रही है किसी कमोडिटी की और फिर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड नहीं डिक्रीज होगा।
These are all hypothetical results that I am stating, but the point here to be noticed is कि जब आप कोई थ्योरी एस्टैब्लिश करते हो, आप उसको प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हो। असेंशियली आप थ्योरी क्यों बना रहे हो? क्योंकि आप कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड कर पाओ। ठीक है, आपने बोला डिमांड और प्राइस नेगेटिवली रिलेटेड है, ये थ्योरी आपके लिए बहुत यूजफुल रही इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि आप इससे बहुत सारे कंक्लूजन्स बना सकते हो। अगर आप एक बिजनेस फील्ड में हो, आप एक बिजनेस रन करते हो, तो आपके लिए ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको इससे पता लगेगा कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करूंगा तो उससे मेरी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप एक कंज्यूमर हो तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपकी डिमांड डिफर करेगी बेस्ड ऑन प्राइसेस। सो ऑब्वियसली थ्योरीज आर यूजफुल, जिससे कि हम अपने आसपास के सिनारियोज को स्टडी कर पाए, समझ पाए। तो प्रिडिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना करेक्ट प्रिडिक्शन कोई थ्योरी करेगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम उस थ्योरी को बोल सकते हैं। सो when you notice that there is some mismatch in your theory and your prediction, then you try to incorporate these mismatches and you try to correct the theory or improve the theory. This is the basic, the core of empirical sciences. And economics is an empirical science. Economics में जो भी चीजें हम establish करते हैं, चाहे वो interest rate का relationship हो with money supply, या interest rate का relationship हो with prices, या unemployment का relationship हो with inflation, all of this is based on these 5 core pointers. आप कोई चीज ऑब्जर्व करते हो, आप उसको थ्योरी बनाते हो, फिर आप थ्योरी से वापस चेक करते हो कि क्या वो रियलिटी में ऑपरेट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो आप थ्योरी को बेटर बनाने की कोशिश करते हो।